میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارا سفر ہے جنوب مشرقی یورپ میں واقع قدیم تہذیبوں کے حامل ایک غیر مسلم ملک یونان کا۔ یونان جسے ہیلینیا بھی کہا جاتا ہے، گریک بھی اور گریس بھی، ایک وقت میں سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی ریاست تھی، جسے یونان میں ہیلینک ریپبلک بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی گہرائی میں جانے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں کو جانی ٹی وی میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تاریخ کے اوراق ٹٹولنے پر پتہ چلتا ہے کہ یونان میں انسانی زندگی کا وجود برف کے زمانے کے بعد کا ہے، جب انسان نے پتھر کو اپنی بہتر زندگی کے مقاصد کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ کم و بیش 2,70,000 سال قبل مسیح تک کی زندگی کے آثار یونان کے صوبہ مقدونیہ میں دریافت ہونے والی ایک غار سے ملے ہیں۔ یونان کو قدیم اور جدید اماج گاہوں کی سرزمین بھی کہا جائے تو یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا۔ 3200 سال قبل مسیح میں جب لوگوں نے زراعت کے پیشے کو اپنا کر اپنی زندگی میں بہتری لائی تو یونان وہ پہلا ملک تھا جہاں پر یہ تہذیبیں رونما ہوئی تھیں۔ سال سال کر کے صدیاں بیتتی گئیں، یہاں تک کہ ہخامنشی سلطنت کی نظر یونان پر پڑ گئی۔ ہخامنشی سلطنت ایک فارسی سلطنت تھی جو عظیم ایرانی سلطنتوں کے سلسلے کی ایک پہلی کڑی تھی۔ یہ سلطنت آبادی کے لحاظ سے رومی سلطنت کے بعد دنیا کی دوسری بڑی سلطنت تھی، جو 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ سکندر اعظم کی یونان فتح کے 7 سال بعد سکندر اعظم کی وفات ہو جاتی ہے اور سکندر اعظم کی بنائی ہوئی سلطنت جو انڈیا سے یونان تک اور کئی دیگر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور کچھ ہی سالوں میں یہ ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 200 قبل مسیح میں جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی تو رومیوں نے یونان کو اپنی سلطنت کا حصہ بناتے ہوئے اسے اپنے قبضہ اختیار میں لے لیا۔ رومی سلطنت آبادی کے لحاظ سے آج تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ اپنے عروج کے دنوں میں اس سلطنت کا رقبہ 65 لاکھ مربع کلومیٹر تھا اور آبادی 90 لاکھ افراد کے قریب تھی، جو اس وقت کی آبادی میں دنیا کی آبادی کا 20% سے کچھ زیادہ ہی بنتا تھا۔ مغربی رومی سلطنت تقریباً 500 سالوں تک قائم رہی، جبکہ مشرقی سلطنت جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، جن میں یونان اور ترکی بھی شامل تھے، 1000 سالوں تک قائم رہی۔ 29 مئی 1453 کو بازنطینی سلطنت عثمانیوں کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ کے بعد ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی یونان میں پہلی بار اسلام پھیلنے لگا۔ ترکوں کے دور میں اس علاقے نے ترقی کی، مساجد بننے لگیں اور تعمیر کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ کم و بیش 400 سال کے شاندار طویل دور حکومت کے بعد 18ویں صدی عیسوی میں یہاں سے مسلمان حکمرانوں کا خاتمہ ہوا۔ 15 جنوری 1822 کو سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا تھا کہ یونان اب مسلم حکومت یعنی سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا، جسے ترکوں نے 3 فروری 1830 میں قبول کیا تھا کہ یونان اب آزاد ہو چکا ہے۔ آزادی کے بعد بھی کئی جزیروں پر ترکوں اور یونانیوں کے درمیان تنازع برقرار رہا، لیکن 1989 میں قیامت خیز زلزلے نے دونوں ممالک کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک میں نقصان تو ہوا تھا مگر آپس کی رنجشیں کافی کم ہو گئی تھی۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان باہمی مدد کا تبادلہ ہوتا رہا تھا۔ ترکوں کے دور حکومت کے دوران یونان میں مسلم آبادی بڑھنے لگی تھی، مگر ترکوں کے جاتے ہی
आबादी में कोई खातर खा इजाफा न हुआ। 1923 में होने वाले यूनान तुर्क मुआहदे में, जिसमें आबादी का तबादला भी शामिल था, मुस्लिम आबादी तुर्की मुंतकिल हो गई और तुर्की से मसीही आबादी यूनान आने लगी। आज के यूनान में मुस्लिम आबादी की शरह सिर्फ 15% के करीब है। इन 15% में भी एक बड़ी तादाद में मुसलमान ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे ममालिक से आने वाले हैं। यूनान 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक बाहमी रास्ते का भी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से हर साल हज़ारों की तादाद में यूरोप जाने के शौकीन नौजवान तुर्की से होते हुए इसी यूनान के रास्ते से अगले यूरोपीय ममालिक में जाते हैं। पाकिस्तानी एजेंट्स लाखों रुपए सिर्फ चंद सब्ज़ बाग दिखाकर नौजवानों से मठोर लेते हैं, जिनमें बेशतर अफराद किसी न किसी मुल्क में पकड़े जाते हैं। कई अफराद हफ्तों हफ्तों की पैदल मुसाफत बर्दाश्त नहीं कर पाते और कई गर्मी की शिद्दत को ना बर्दाश्त करने वाले होते हैं। इन लोगों को ग्रुपों की शक्ल में एक मुल्क से अगले मुल्क मुंतकिल किया जाता है। कहीं पर एक कार की डिग्गी में से 15 से 20 अफराद पकड़े जाते हैं, तो कहीं बसों के नीचे रस्सों से बंधे हुए और कई बार बंद कंटेनरों में अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। मर जाने वाले अफराद को ये लोग उठाकर फेंक देते हैं, जिनका जनाजा तक नहीं पढ़ते। इतना सब इल्म होने के बावजूद भी लोग पता नहीं क्यों 2 नंबर ज़राए से ही यूरोप जाना चाहते हैं। यूनान के बारे में अगर दिलचस्प और मालूमाती हक़ाइक़ की बात की जाए तो यूनान 1,31,957 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया का 96वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। यूनान 1,12,00,000 अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 81वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। यूनान यूरोपीय यूनियन का बाकायदा मेंबर है। यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक की तरह यूरो ही यूनान की करेंसी को कहा जाता है। 1 यूरो पाकिस्तानी 129.74 रुपयों के बराबर है। यूनान का कॉलिंग कोड +30 है। पाकिस्तान से 4,395 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े ये मुल्क यूनान वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। एथेंस यूनान का दारुल हुकूमत है। ये शहर यूनान के अजीम तरीन शहरों में भी शुमार होता है। इस शहर का नाम एथने देवी के नाम पर रखा गया था। जमहूरियत का तस्वर भी सबसे पहले यूनान में कायम हुआ था और वहाँ से ये तर्ज हुकूमत दुनिया के दीगर ममालिक में पहुँचा था। यूनान में हर नौजवान को 18 साल की उम्र में एथेंस की देवी के हुजूर में वफादारी हलफ उठाना पड़ता था। एथेंस शहर अपने अंदर 42 लाख अफराद को समोए हुए है, यानी यूनान की 1/3 आबादी इसी शहर में रहाइश पजीर है। यूनान ही वो मुल्क था जिसने दुनिया को अफलातून, अरस्तु और सकरात जैसे अजीम मुफक्करीन दिए थे। यूनान की सरहदें तुर्की, अल्बानिया, मकदूनिया, बल्गारिया जैसे ममालिक और बहरा एजियन और बहरुल योनी जैसे समुद्रों से मिलती हैं। यूनान के बारे में एक कहावत है कि अगर यूनान में लड़के एथेंस में रहते हैं तो 7 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर स्पार्टा में रहते हैं तो वो जेलू में जाएंगे। यूनान में स्पार्टन लोगों को 30 साल की उम्र तक, यानी जब तक वो अपनी फौजी सरगर्मियों को तर्क नहीं करते, उनके खानदान में नहीं जाने दिया जाता। 2006 में यूनान में मुसलमानों को मसाजिद बनाने की इजाज़त मिल गई थी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद एथेंस के
मगरबी जानब रहाइश पजीर है। यहाँ पर मुसलमानों का मजहबी मरकज़ भी मौजूद है। यूनानी ज़ुबान ही यूनानों की कौमी ज़ुबान है, जबकि तुर्किश, बल्गारियन, रोमानी और दीगर कई ज़ुबानें आबादी और मज़हब के लिहाज से बोली जाती हैं। यूनान को ओलंपिक्स गेम का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। जदीद ओलंपिक्स के 2 बार मुकाबले यूनान की सरजमीन पर हो चुके हैं। फुटबॉल यूनान में बड़े शौक से खेला जाता है और फुटबॉल ही यूनान का कौमी खेल है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, वाटर पोलो, वॉलीबॉल और हैंडबॉल जैसी खेलें आम तौर पर खेली जाती हैं। यूनान के बाज़ इलाकों में अब क्रिकेट के शौकीन हजरात भी अपने बल्ले गरमाते नजर आते हैं। कदीम तहजीबों को संभाले हुए इस मुल्क में हर माह लाखों सियाह सैरो तफरी के लिए आते हैं। 2016 में 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा अफराद ने यूनान का सफ़र किया। सियाहों की ये तादाद पिछले चंद सालों से बढ़ती जा रही है, जो यूनान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। 2017 में हासिल किए गए अदादोशुमार के मुताबिक यूनान की 82% आबादी इंटरनेट का रोज़ाना इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ये थी यूनान के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक तफरीही वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे दिया गया लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। आप अपनी कीमती आरा बज़रिया कमेंट भी हमें अरसाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।